हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 10 सितंबर 2024 2024 का दिन है और आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस न्यूज़पेपर के डिस्कशन में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनका लिंक कहीं ना कहीं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट बैठेगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहली चीज है मैल न्यूट्रिशन। यहाँ से क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। इसके साथ साथ ब्रिक्स और यूएई और यहाँ पे न्यूक्लियर कोऑपरेशन। मेंस में यूजुअली न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है एक, और ब्रिक्स का जो रिवाइवल हुआ था उस टाइम पे भी क्वेश्चन आया था ब्रिक्स का। ठीक है, दैट हाउ ब्रिक्स इज गेटिंग मोर रेलिवेंट देन द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसके साथ साथ इफ यू सी मेट्रोलॉजी, रोड सेफ्टी and these submarines, they are some of the key topics which are being asked in UPSC prelims usually. Further, we will also see some conflict based questions, these articles जिसमें यूएसए ने ये बोला है that Russia was being supplied missiles by Iran, and there is a conceptual, you can say an editorial, an article, not editorial basically, about the requirements of helium in rockets. So this will be particularly a science-based article, and we will see through it that what is the importance of helium in rockets. Further, we will also see that uh, there has been a continuous debate over past few months on the taxation, that is 18% GST, which is being implied on the tax and health, you can say insurance, health cover premiums. This taxation on medical devices and healthcare facilities and healthcare products, and particularly the life insurance, is being debated that this is not something which should be there. So now we will see that what all are the discussions about this. Before we begin the discussion, I want you to have a look at this quote, which is by Maya Angelou, and she writes that my mission in life is not merely to survive, but to thrive. So, what do you mean by just surviving and actually thriving in the life? Thriving, as I say, that when you came to this universe, when you came to your society, when you came to our country, when you were born with responsibilities. Responsibility to contribute back towards the universe, contribute towards the society, contribute towards your nation. Because it's not easy for the universe to bring in a life into this world. What you merely mean is that you just do not need to spend your life. You need to make your life better and better and better every day. This process of making life better is just for the societal cause and for your own cause, because you are a human and you have been the best of all the creations of this universe. आपकी लाइफ बस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने हवा, पानी और खाना खा के, यूज करके, इस अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करके आप चले गए और आपका नाम कहीं नहीं रहा। ठीक है, आपका नाम रहे ना रहे, आपकी हिस्ट्री बने ना बने, किसी चीज से मतलब नहीं है, बट आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें यू शुड एक्चुअली लिव दैट लाइफ, you should actually leave a mark behind yourself once you go. You should actually help this society, help this country grow better.
you should leave a better world once you leave this world. That is how you make your life thrive. ठीक है? So with this, we will start our discussion with the aim that we will thrive in our lives. We will become the civil servants and we will start our journey with the best of all the positive energy which we can accumulate from this universe. Once we get into the services and once we get into the preparation mode, we need to understand that from the day one of our preparation mode, from today onwards, we must not be just living the life. हमें अपनी लाइफ को थ्राइव कराना है. दैट इज, हमें अपनी लाइफ एक्चुअल में जीनी है. कैसे जीनी है वो लाइफ? टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. Whatever you want to do it in an organized manner. Find objectives, find goals for your life. Then only you can have a life which is actually thriving, not just surviving. ठीक है? बिकॉज सर्वाइवल तो पैरासाइट का भी होता है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती. यू आर ह्यूमंस, यू हैव बीन बेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएशंस. Before we begin the discussion, I want you to understand that how UPSC actually makes its answer questions and how UPSC actually makes the questions and what are the basic conceptual things which we need to understand once we understand the questions of UPSC. The question talks about the thickness of troposphere at equator is much greater as compared to poles. Do you think that this statement could be correct? Because troposphere is much greater as compared to poles. The height or the thickness. How can this be correct? Because अगर आपने कल वाला डिस्कशन देखा होगा, कल वाले डिस्कशन में हमने ये देखा था कि अर्थ जो है, it releases long wave radiation and it helps to increase the temperature of atmosphere through conduction. ठीक है? And this also helps in the convection or convectional currents, that is the vertical wind shear. ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था. तो जितना अर्थ का सरफेस गर्म होता जाएगा उतनी ही ज्यादा यहां से हवाएं उठती चली जाएंगी. ठीक है? उतना ज्यादा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और उतना ही ज्यादा ऊंचाई तक ये हवाएं जाएंगी. उतनी ही ज्यादा ऊंचाई तक आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी. बट वहीं पे अगर आप इस अर्थ के स्फेयर को पोल्स तक एक्सटेंड करो तो पोल्स पे कंडक्शन नहीं हो रहा है. पोल्स यूजुअली आर द सिंक्स. यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. क्यों? क्योंकि ये ठंडा इलाका है, यहाँ पे सनलाइट नहीं है. तो होगा क्या? इवेंचुअली ट्रोपोस्फियर का जो थिकनेस है वो कम होता जाएगा. ठीक है? एट द इक्वेटर heat is transported to greater heights by strong convectional currents. This is what I explained. So answer is simple. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains the statement 1. The height is because of the convectional currents to the greater heights. This question is directly from your NCERT. डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं दैट ज्योग्राफी के लिए आपको 4 एनसीईआरटीज के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है? आपने जीसी लियोंग पढ़ ली, बहुत है आपके लिए. आपने वर्ल्ड एटलस याद कर लिया, आप प्लेसेस इन न्यूज देख लिए, आपने डिफरेंट जितने भी मैप्स से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स है वो सब समझ लिए. बस उतना आपके लिए काफी है. 4 एनसीईआरटीज, 2 11th क्लास की, 2 12th क्लास की, 2 फिजिकल एंड 2 ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ठीक है? ये 4 एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है?
फिजिकल में भी एक इंडियन है, एक वर्ल्ड है, ह्यूमन में भी एक इंडियन है, एक वर्ल्ड है, बस ये 4 एनसीईआरटीज है जिनको आपको समझना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता, और जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी बेसिक एनसीईआरटी से ही था। 11th क्लास की एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया हुआ है वो क्वेश्चन। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सिंपल है ये। सबसे पहले हमें ट्रोपोस्फेयर मिलता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आपका जितना भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, आपके हॉट एयर बलून्स, एयरप्लेन्स, सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाहर आपको मिलेगी ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के बाद आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको मिलेगा मीजोस्फेयर। ठीक है। मीजोस्फेयर में आपको पर्टिकुलर फिनोमेना मिलेगा मीटियोर्स का। ठीक है। और मीजोस्फेयर के बाद आपको मिलेगी कार्बन लाइन। व्हाट इज कार्बन लाइन? ये एक ऐसी लाइन है जो हमने इमेजिनरी लाइन बना के रखी है कि यहां के बाद हमारा जो है स्पेस स्टार्ट होता है। ठीक है। कुछ मिशंस भी हमारे पास, सैटेलाइट मिशंस, जो ह्यूमंस को लेके जाते हैं स्पेस में, तो वो कार्बन लाइन तक जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अरोराज, दैट इज द नॉर्दर्न लाइट्स, द ब्यूटीफुल phenomena of northern lights and southern lights, और दी ऑस्ट्रेलियस बोरियलिस। ठीक है। ये आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ द आयंस विच कम फ्रॉम द आयनोस्फीयर, दे एंटर आवर एटमॉस्फेयर एंड दे प्रोड्यूस लाइट्स। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये। इनको देखने के लिए लार्ज स्केल पे टूरिज्म होता है और लोग जाते हैं देखने के लिए। आप भी गूगल पे देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको एक्सोस्फेयर मिलेगा जिसमें आपके स्पेसशिप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, डन। दिस इज द सेम थिंग, बट यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, दैट द हाइट ऑफ एंड द विड्थ ऑफ दीज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर 12 से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर इज ऑन इक्वेटर एंड 12 किलोमीटर इज ऑन दिस पोल्स। दैट इज द विड्थ ऑफ योर ट्रोपोस्फेयर। एंड ट्रोपोस्फेयर में जितना आप ऊपर जाते जाओगे, the more you increase, the more you go higher in the height or altitude, the temperature decreases, ठीक है, constantly at a speed of 1 degree on 6.5 I guess kilometers. हाँ, so it's like I guess 1 degree at 6.5 meters. हाँ, 6,000। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर में the temperature will increase with the increasing height or increasing altitude, while as in mesosphere, again the temperature will decrease with the increasing altitude, but in thermosphere it will increase to 1200 Celsius। ठीक है, 1200 डिग्रीज तक जाएगा टेम्परेचर जितना आप ऊपर चले जाओगे। इसीलिए थर्मोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर में जब एंट्री लेते हैं जितने भी स्पेस के प्रोडक्ट्स हैं तो वो जलने लगते हैं। नॉट स्पेस में जितनी भी चीजें हम डालते हैं, जब वो वापस री एंट्री करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन। एंड एक्सोस्फेयर का टेम्परेचर इज अराउंड 1200 डिग्रीज। डन। इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हो, तो बट यहाँ पे द आंसर विल बी ए नॉट डी। ठीक है, चलिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। This editorial talks about the taxation on health and life insurance premiums. Basically, न्यूज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा दैट अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। ठीक है, 30 लाख का आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया और यह आपने लिया है 10 साल के लिए।
या लाइफ इंश्योरेंस आपने लाइफ के लिए ले लिया, ठीक है, टर्म कवर है ये आपका। आप समझो अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है ना, तो आपको यहाँ पे हर मंथ या हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा इस पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये आपका लाइफ कवर है, तो आपको इसमें कोई इंस्टॉलमेंट या एसआईपी टाइप से कुछ नहीं भरना है, बस आपको प्रीमियम देते रहना है। प्रीमियम फॉर एग्जांपल आपका इस पॉलिसी का प्रीमियम होगा अराउंड अराउंड 5,000 रुपीज, ठीक है। तो आप मंथली 5,000 रुपीज दे रहे हो अपना प्रीमियम, या ईयरली आप 5,000 रुपीज दे रहे हो अपना प्रीमियम। फाइव, आप मान लो ईयरली आप 60,000 दे रहे हो, 12 × 5 है 60,000, ठीक है। आप इतना ईयरली दे रहे हो और आपको पता है कि यार मैं 20 साल का हूं, मुझे अगले 40 साल और देना है, 60 के बाद या जब भी मेरी डेथ हो जाएगी तब मुझे ये टर्म कवर मिल जाएगा वापस। बट दिस प्रीमियम इज बीइंग चार्ज्ड एंड टैक्स्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी जो इस पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 18%। अब अगर आप प्रीमियम पे 18% जीएसटी लगाओगे, ठीक है, तो आप सोचो 5,000 के इंस्टॉलमेंट, 5,000 के प्रीमियम पे कितना जीएसटी देना पड़ेगा। दैट इज अराउंड 10% इज 500 एंड 10 more % is 400 something, 8% something 800, like around 900 something, ठीक है। आप मान लो 900 आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। दिस इज ऑन एवरी मंथली प्रीमियम यू आर पेइंग। दिस इज द प्रॉब्लम विद मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इस टैक्स बर्डन की वजह से इंश्योरेंस के कवर में नहीं आ रहे हैं। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एट द गवर्नेंस लेवल दैट वी डू वन थिंग, दैट इज वी इंक्रीज द नेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। जितने भी लोग इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले रहे हैं, इसमें अगर आप देखो तो व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है, और अगर आप देखो तो जनरल इंश्योरेंस का नेट हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा है। लोग जनरल इंश्योरेंस ले रहे हैं, बट लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रहे। ना लेने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है दैट टैक्सेशन के ऊपर लगता है, टैक्स लगता है इसके प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी ज्यादा है और हमें यहाँ पे समझना है। तो समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आया था और जीएसटी काउंसिल ने रेट डिसाइड किया था ऑन द सर्विसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस as it prescribed that the Union Finance Ministry, which nominated the ministers which nominated by the government, it said that insurance is a service, ठीक है, and policy holders they pay tax on their premiums, generating significant revenue for government. But जो भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनको टैक्स डिडक्शन भी मिलती है, that is under section 80C and under section 80D of the Income Tax Act 1961, they are being allowed to claim tax deductions, ठीक है। साल के एंड पे जब वो आईटीआर अपना फाइल करेंगे, क्योंकि उनने इंश्योरेंस प्रीमियम्स लिए हुए हैं, तो उनको टैक्स डिडक्शन वहां पे अलाउ किया जाएगा। बट दिस इज समथिंग ऑन डायरेक्ट इनकम एंड दिस इज समथिंग ऑन पर्सनल इनकम। ये तो उनको इनकम टैक्स पे नहीं देना पड़ेगा टैक्सेशन, ठीक है, क्योंकि उनने इतना पैसा इंश्योरेंस में दे दिया है, वहां पे उन्होंने प्रीमियम भी पे किया है, तो अब उनको यहाँ पे टैक्स डिडक्शन दे दिया जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग इंश्योरेंस ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना आपका प्रीमियम है और जितना इंक्रीज इंश्योरेंस ने प्रीमियम को किया है रिसेंटली, अगर आप देखो तो टोटल इंक्रीज इज अराउंड 50%। और रेन्यूअल रेट्स जो पॉलिसीज के हैं दे आर नाउ डिक्लाइनिंग। व्हाई? बिकॉज ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज आर इंक्रीजिंग देयर प्रीमियम।
प्लस प्रीमियम के साथ साथ ये भी हो रहा है दैट प्रीमियम के साथ साथ आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। और इंडिया का एक गोल है नेशनल लेवल पे दैट वी नीड टू एस्टैब्लिश इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. So in order to increase this net of insurance, we need to remove this cap of 18% GST on insurance products. ठीक है। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप देखो तो 50 डेज का डिक्लाइन डेडलाइन होता है फॉर ए न्यू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे बनाया गया है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी, और उनको बोला गया है कि 50 दिन में आप इस चीज को रिव्यू करो कि क्या हमें ये 18% लेवी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमें जीएसटी स्लैब्स को कितना रैशनलाइज करना चाहिए। ठीक है। प्लस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, a new ministerial group is being formed to deliberate on the future of the levy of a few select items including automobiles and demerit goods, कि आप इन ऑटोमोबाइल्स पे और डीमेरिट गुड्स पे कितना टैक्स लगाओगे, उस पे भी बात चल रही है। ठीक है। उसके लिए भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बात की जा रही है इसमें कुछ सेलेक्ट फ्यू मिनिस्टर्स होंगे जो सेंटर से और स्टेट से नॉमिनेट होके जाएंगे, जो डिसाइड करेंगे कि रखना है या नहीं रखना है। ठीक है। गवर्नमेंट, दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन आस्क्ड to examine the issue of factoring in the cost of land while assessing the value of construction services in property transactions. ठीक है। कि जितनी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है उसमें आप ये भी देखोगे कि लैंड किस एरिया का है और उस लैंड की कॉस्टिंग कितनी है, उसी हिसाब से उस जगह की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी होंगी, और उसी जगह से उस हिसाब का जो बंदा होगा, जो कंस्ट्रक्टर होगा, उसका इनकम भी होगा। So that is how we can derive this thing that how much we can tax that person. Further, a tax on cancer drugs जो 12% का टैक्स था इसको कम कर दिया गया है 5%। और कार सीट्स के जो लेदर कवर्स होते हैं, ये जो कवर्स होते हैं कार सीट्स के ऊपर, उसको लग्जरी गुड मान के उसको 28% कर दिया है जीएसटी। ठीक है। एंड टैक्स ऑन सम सेवरी स्नैक्स goes down to 12%. ठीक है। These numbers we do not need to remember, हाँ, बट कैंसर ड्रग्स का जो नंबर है ये याद रखना है, दैट कैंसर ड्रग्स पे 5% का टैक्स जीएसटी लग रहा है, बस इतना याद रखना है। ठीक है। चलो, बाकी सब चीजें हो गई है क्लियर। तो कैंसर ड्रग्स में ये भी याद रखना है कौन कौन सा कैंसर ड्रग यहाँ पे बात की जा रही है। वन इज ट्रांसट्यूजुमैब, डेरुक्स, टिकैन एंड ऑक्सीमर्टिनिब एंड ड्रूवेलैम। आई गेस द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल दैट मच, आप ये पढ़ लेना बाद में। 12 to 5% कर दिया गया है, बट ये ड्रग्स याद रख लेना बिकॉज लास्ट टाइम 2021 में यूपीएससी ने ऐसे ही 4 केमिकल्स पूछ लिए थे लाइन से, 1 2 3 4, और बोला था ये 4 केमिकल्स किस में यूज होते हैं। ठीक है। दोज वेर बीइंग डिस्कस्ड इन मल्टीपल एडिटोरियल्स बिकॉज वो केमिकल्स यूज हो रहे थे टॉयलेटरीज में। ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को टॉक्सिकेशन भी हो रही थी, वो केमिकल्स टॉक्सिक थे, उसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन भी हो रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि सेम लेवल पे हमारा क्वेश्चन आ सकता है अबाउट टैक्सेशन ऑन दीज कैंसर ड्रग्स। ठीक है। कि ये 3 ड्रग्स क्या है, दे आर कैंसर ड्रग्स, रिमेंबर दीज, बस। चलो, सो हाउ एक्चुअली यूनिवर्सल हेल्थ केयर वर्क्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इफ यू सी, अगर आप देखो तो यूनाइटेड किंगडम में every citizen has same access to government owned services. हर एक बंदा जा सकता है पब्लिक हॉस्पिटल में, फ्रीली अवेलेबल है, फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर है, एंड दिस ऑल इज पेड फॉर बाय द इनकम टैक्स रेवेन्यू। दिस इज हाउ यूके वर्क्स। जर्मनी में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट रन्स हेल्थ इंश्योरेंस फंड। ठीक है। जो फंड बनाया जाता है कहां से, एम्प्लॉयज के पेरोल के टैक्स से। जो पेरोल के ऊपर एम्प्लॉयज को टैक्स देना पड़ता है, या जितने भी एम्प्लॉयज पेरोल पे होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, या वो एम्प्लॉयज जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं,
उसके हिसाब से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को टैक्स देना पड़ता है एक, ठीक है। और उस टैक्स से एक फंड क्रिएट किया जाता है। वो फंड ये एम्प्लॉयज और जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनके पैसे से एक फंड क्रिएट किया जाएगा, और वो फंड पैसा देगा किसको? हेल्थ केयर सेक्टर को। और वो हेल्थ केयर सेक्टर प्राइवेट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हर जगह होगा। प्राइवेट डॉक्टर्स भी सर्विस देंगे, अगर आपके पास गवर्नमेंट डॉक्टर्स है तो वो भी सर्विस देंगे। गवर्नमेंट डॉक्टर्स वैसे होते नहीं है, बट आप समझो प्राइवेट डॉक्टर्स को जो फंडिंग है, उनका जो पैसा है वो कौन देता है? वो गवर्नमेंट दे रही है। कहां से दे रही है? एम्प्लॉयज के इस फंड से, जो बनाया जा रहा है टैक्स के ऊपर, ठीक है। दिस इज वन मोर मैकेनिज्म। एंड वन मोर मैकेनिज्म इज दैट नेशनल लेवल का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसमें एवरी सिटीजन pays into a national plan provided by a single insurance company। नेशनल लेवल पे जैसे हमारी जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसी ही एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जो क्या कर रही है? हर एक सिटीजन के लिए इंश्योरेंस दे रही है, ठीक है। जैसे आप समझ लो, हमने आयुष्मान भारत में, आरोग्य मिशन में एक हेल्थ कार्ड बनवाया जो आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। अब ये सब सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस है। सब सिटीजन्स जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाके, पब्लिकली फंडेड, प्राइवेटली डिलीवर्ड जो भी हॉस्पिटल होगा, वहां पे जाके अपना इलाज कराएंगे। पैसा कहां से आएगा इलाज का? वो इस इंश्योरेंस के फंड से आएगा, वो इस इंश्योरेंस कंपनी से आएगा, ठीक है। बट हमारे इंश्योरेंस में प्रॉब्लम ये है कि वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर को ही डील कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स में नहीं जा रहा, ठीक है। तो दिस वाज न्यूज आर्टिकल नंबर 1। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल, बिकॉज इस न्यूज आर्टिकल के बाद और कोई न्यूज नहीं मिला मुझे एडिटोरियल पेज तक, तो आप डायरेक्ट अपना न्यूज़पेपर एडिटोरियल से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ इस न्यूज के बाद। ये एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि सेंसस 2021 में होने वाली थी, ठीक है। 2021 में जो सेंसस होने वाली थी, अब वो नहीं हो रही है, तो रफली एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि अगले साल सेंसस होने वाली है। फाइनल सेंसस रिपोर्ट हमारे पास 2026-2027 में आएगी, और देयर विल बी अ गैप ऑफ 16 years। 16 साल के बाद हमारे पास सेंसस का डेटा आएगा, ठीक है, 2026-27 में। बट एज पर यूएन रिपोर्ट्स, इंडिया ने ऑलरेडी सरपास कर लिया है चाइना की पॉपुलेशन को। कुछ ऐसे विलेजेस, कुछ ऐसे रीजन्स, जैसे दिल्ली में हौज खास नाम का एक ऐसा रीजन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जो उस टाइम पे हौज खास विलेज था 2011 में, वो एक गांव था। बट अगर आप आज देखो तो इट इज वन ऑफ द पॉश, वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज इन साउथ दिल्ली, ठीक है। अगर आप वहां जाओ तो वहां टोटली विलेज ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा विलेज नाम क्यों रखा है, अभी भी उसको हौज खास विलेज ही बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग जहां पे डेटा काम करता है, जहां पे सेंसस काम करती है, ठीक है। सो बेसिकली बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस सेंसस एंड व्हाट आर द मेजर्स इन अदर कंट्रीज, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट सेंसस एक्चुअली डील्स विद, ठीक है। 2021 में जो सेंसस होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई, ठीक है, क्लियर कट कहानी। बिकॉज जो रीजंस यहाँ पे बोले गए थे, 2024 का इलेक्शन भी था, कोविड भी था, बाकी सारी चीजें भी थी, ठीक है, और ये सब चीजें हो गई थी। और अब क्या हुआ है रिसेंटली, 2023 में ही ये हुआ था दैट हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया था, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस होने वाले थे, हमारे पास डेटा था नहीं, तो हमने इनको फ्रीज कर दिया प्री कोविड टाइम्स के ऊपर, ठीक है। अब सेंसस रूल्स हमें बताते हैं कि ये फ्रीज करने का जो पावर है किसके पास है? सेंसस कमिश्नर के पास, ठीक है। ये तो अलग कहानी है कि 2024 के इलेक्शंस के लिए हमने क्या किया, ये हम बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि सेंसस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। यस, इफ यू टॉक अबाउट सेंसस, इट इज अ पॉपुलेशन एक्सरसाइज, जिसमें आप डेमोग्राफी, इकोनॉमी एंड डेटा अबाउट सोसाइटी कलेक्ट करते हो। सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूइंग द कंट्रीज प्रोग्रेस
इन पास्ट 1 डिकेड। तो 1 डिकेड का पूरा ये डेटा होता है। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है या क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जाता है। पहला होता है, जो इसका पहला फेज होता है, दैट इज हाउस लिस्टिंग, जो यहाँ पे भी आपको लिखा जा रहा है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। सेकेंड इज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ठीक है, ये 2 फेजेस होते हैं सेंसस के, जिसमें आप सबसे पहले घर देखते हो कि कितने घर हैं, और उसके बाद आप हर इंडिविजुअल का डेटा लेते हो कि हर इंडिविजुअल क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, और कितने इंडिविजुअल है घर में, क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप देखो तो सेंसस 10 साल के गैप पे होती है, 10 साल की फ्रीक्वेंसी पे होती है। और पहली जो सेंसस इंडिया में हुई थी, दैट वाज इन 1881 बाय W.C. प्लॉडेन, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 years। 1881 से लेके आज तक हर 10 साल पे सेंसस हुई है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट आया था हमारा 1948 में। ठीक है, दिस एक्ट एक्चुअली प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट सेंसस। हाउएवर यहां पे इस एक्ट के अंदर टाइमिंग नहीं मेंशन की गई है कि कब होना चाहिए, अदरवाइज ये लीगली या स्टैट्यूटरली हो जाता कि आपको ये, आपका इस एक्ट का वायलेशन हो जाता अगर इस टाइम पे सेंसस नहीं होती। ठीक है, डन। हेंस अ सेंसस इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इन इंडिया। ठीक है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट दैट इट नीड्स टू बी कंडक्टेड डेकेनली। हर 10 साल में ये हो जाए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी एक्ट में नहीं बोला गया है। रिमेंबर, नो एक्ट और आर्टिकल मेंशंस 10 years और डेकेनियल सेंसस। ठीक है, कि हर 10 साल में सेंसस हो ऐसा किसी भी एक्ट में नहीं लिखा गया है। और भी कंट्रीज है हमारे पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जहां पे 5 साल पे हर बार 5 साल के बाद सेंसस होती है। बट वह वहीं पे हमारे पास कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूके, जहां पे हर 10 साल में सेंसस होती है। नोडल मिनिस्ट्री अगर आप देखो इस सेंसस की, तो हमारे यहाँ जो सेंसस के साथ डील करती है, इट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अंटिल 1951 ये सेंसस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये एडहॉक बेसिस पे काम कर रही थी, बट उसके बाद ये कंटिन्यू हो गई। यहां तक आपको सेंसस का बेस पता चला। सेंसस की सिग्निफिकेंस आपको पता है कि प्राइमरी डेटा होता है, डायरेक्टली आप लोगों से डेटा लेते हो, ऑथेंटिक डेटा होता है। ठीक है, रिलायबल डेटा होता है, अप टू डेट डेटा होता है, क्योंकि इतना रिलायबल है कि हम आज भी 2011-12 वाला डेटा फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर SC STs, बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस इंडस्ट्रीज, ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स, क्योंकि वो भी बेस्ड होते हैं सेंसस के डेटा पे। हाउएवर जितना ये ज्यादा डिले होता जा रहा है सेंसस, उतने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, जैसे अभी प्रॉब्लम्स आई है हमारे सेंसस के डेटा को लेके कि हम इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं कर पाए। ठीक है, और हमारे लिए डेटा से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हो गए। NSO का डेटा, CSO का डेटा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, NFHS का डेटा अलग आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स भी बनाई थी प्रणब सेन के अंदर, वो भी कल की डेट में हमने डिसबैन कर दी है। तो अब ऑथर यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेंड और इंडिया लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सेंसस में 2 चीजें होती है, वन इज हाउस लिस्टिंग, अनदर इज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ठीक है, ऑथर बोल रहे हैं ये जो इन्यूमरेशन बेस्ड सेंसस होती है, आप ना ये लास्ट टाइम कर लो,
2021-22 में आप ये जो अभी आप कर रहे हो 2025 में जो सेंसस आप कर रहे हो, इसको आप लास्ट टाइम कर लो एज इन्यूमरेशन बेस्ड सेंसस। मतलब क्या है इस चीज का? अगर आपने लास्ट टाइम कर ली कि ये लास्ट इन्यूमरेशन बेस्ड सेंसस है, तो उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद डेटा कहां से लाओगे? तो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे यूके में, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज में डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे वहां पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है सुपरमार्केट के स्कैनर्स से, कार से, ऑटो ट्रेडर, रेल डिलीवरी ग्रुप्स, ये सब के पास जितना भी डेटा होता है उस डेटा को कलेक्ट करके उसी डेटा पे ऑपरेशंस चला के आप अपना नेशनल स्टेटिस्टिकल डेटा निकाल लेते हो। क्या आपको जो चाहिए वो डेटा आप निकाल लेते हो कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई होगी, उनकी इनकम कितनी बढ़ गई होगी, ठीक है, ये सब चीज। वैसे ही ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे हमने अभी रिसेंटली पैन, आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, जिसको हम जैम ट्रिनिटी बोलते थे, ठीक है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, इसके साथ हमने पैन भी जोड़ दिया, पैन कार्ड। जब हमने इस डेटा का इंटीग्रेशन किया तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, हमारा एफिशिएंसी आने लग गई। अब ये एक मैमथ टास्क है, इस इंटीग्रेशन को करना डिजिटल लेवल पे बहुत ही बड़ा एक टास्क है। इट्स एन एलिफेंट बिल्ट साइज जिग्सा पजल, कि आपने इतना बड़ा पजल उठा लिया जो एलिफेंट साइज का पजल है। अब इन सब को एक साथ इकट्ठा करना है और वापस एलिफेंट क्रिएट करना है। दिस बिग ऑफ ए टास्क इट इज, बट यस वी कैन डू, क्योंकि हमारे पास आधार सेंट्रिक डेटाबेस है, हमारे पास वोटर कार्ड से, हमारे पास आधार कार्ड से, हमारे पास सेंसस का डेटाबेस हो जाएगा जब हम नई सेंसस करेंगे। तो इसके बाद हम, मतलब ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि हम इसके बाद ये कर सकते हैं कि हम एक डायनामिक रजिस्टर बेस्ड सेंसस उठा ले, ठीक है, और रजिस्टर बेस्ड सेंसस में हम डेटा कलेक्ट करें इन सब जगहों से, एंसिलरी जगहों से डेटा कलेक्ट करें और अपनी सेंसस के डेटा को अपडेट करते चले जाएं, ठीक है, बिकॉज सेंसस सर्व्स अस अ वैल्यूएबल रेपोजिटरी ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये जो सजेशन यहाँ पे दी जा रही है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखो तो ऑस्ट्रिया में 2001 की सेंसस में देयर वाज अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 72 मिलियन यूरोज, ठीक है। स्विट्जरलैंड में those the surveys which were conducted in Switzerland where only 5 to 10% of the population was conducted, उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा डेटा तो वो वैसे ही निकाल लेते हैं, वो एक्स्ट्रापोलिएट करते हैं डेटा थ्रू द हेल्प ऑफ दीज डेटा कलेक्टर्स। तो ऐसे ही हम भी कर सकते हैं और हम भी अपना खर्चा कम कर सकते हैं सेंसस का। और इतना बड़ा एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि हम डेटाबेस इंटीग्रेशन करें और डेटा मॉडलिंग पे काम करें। डन। दिस एडिटोरियल इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे ये एडिटोरियल हमारे लिए हाईलाइट कर रहा है कि 70% जो बच्चे अंडर 5 years ऑफ एज, लेस देन 5 years ऑफ एज, जितने भी बच्चे हैं, ये सब बच्चे जो यहाँ पे इनकी डेथ हो रही है, इन 70% अगर आप देखो तो जितने भी लेस देन 5 years ऑफ एज के बच्चे हैं, 70% डेथ्स आर बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली मैटरनल माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपको इस न्यूज एनालिसिस का ट्रैक हो तो मैं द हिंदू का ये डेटा पॉइंट महीने में कभी एक बार डिस्कस करता हूं, बट उसी दिन डिस्कस करता हूं जिस दिन ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप आज का डेटा पॉइंट देखो तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपके सोसाइटी सोशल जस्टिस के क्वेश्चन का, हेल्थ केयर के क्वेश्चन का ये सीधा सीधा इंट्रोडक्शन है। आपके एसए का ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर डेमोग्राफी पे कोई भी ऐसे आता है उसका ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है कि अभी करंट हालत क्या है। ये 2021 के नंबर्स है कि वर्ल्ड लेवल पे जो माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ्स हो रही है, दे अकाउंट टू अराउंड 50%,
जब अगर आप इंडिया लेवल पे देखो तो दे आर अराउंड 70%। ठीक है, बस इतना ही मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना था और इतना ही आपको याद रखना था। ठीक है, इस डेटा पॉइंट से। बट इस डेटा पॉइंट के बियॉन्ड जाके हमें यह समझना होगा कि मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स अगर आप देखो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलती है दैट मैल न्यूट्रिशन एक्चुअली रेफर्स टू डिफिशियंसीज, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस। तीन चीजें, वन इज deficiency, another is excess, ठीक है, एंड थर्ड इज imbalance of diet। ठीक है, दैट इज इनटेक एंड एनर्जी, इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। आप कम ले रहे हो, आप ज्यादा ले रहे हो, या आप इम्बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, तीनों चीजों में यू आर कंसिडर्ड टू बी मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब यह है कि तीनों चीजों की मदद वजह से आपको या तो आपका वेस्टिंग होगा, मींस आपका बीएमआई बराबर नहीं होगा, बॉडी के रेशियो के हिसाब से आपका मास नहीं होगा बॉडी का। ठीक है, और यू विल बी स्टंटेड, आपकी हाइट नहीं होगी बराबर, या फिर आप अंडर वेट। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जैसे a poor family which survives on just the wheat flour, what they will do is they will have wheat flour continuously, वो गेहूं की रोटी खाएंगे और गेहूं पे ही जिंदा रहेंगे। हार्डली what they can afford is dal, but they will lack vitamin A, they will have iron deficiency because of lack of green veggies, iodine deficiency because of the cheap salt or sodium iodide which they are using, which is lacking sodium iodide, जिससे थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, और इसके साथ साथ मैल न्यूट्रिशन से ओबेसिटी भी होती है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सेस खाना खाने से ओबेसिटी होगी। ठीक है, और इम्बैलेंस और इन सब चीजों को अगर आप क्यूमुलेटिवली देखो तो दे अफेक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये एनसीडीज का बर्डन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल प्रेवलेंस, तो 2022 में देयर वर अराउंड 149 मिलियन चिल्ड्रन less than 5 years of age which were estimated to be stunted, 45 million children were estimated to be wasted। ठीक है, and around 37 million children less than 5 years of age were weighed as obese। ठीक है, 5 साल से पहले ही ओबेसिटी आ गई है। Nearly half of the deaths among children under 5 years of age are linked to nutrition, malnutrition। ठीक है, बट अगर आप देखो तो इंडिया में भी बहुत ही हालत ऐसी है कि हमें इस चीज को डिनाई नहीं करना चाहिए। जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम हमें यहाँ पे भी देखनी है। दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 का डेटा अगर आप देखो तो इंडिया में देर आर अराउंड 19.3% children under the age of 5 years who are wasted, 32.1% are underweight, 3% are overweight। ठीक है, these are the numbers, and 35% are stunted। ठीक है, इतना है हमारे यहाँ इशू। इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन विच इज सफरिंग एनीमिया, तो 25% of men and 57% of women in the age of 15 to 49 years all are suffering through anemia। ठीक है,
रिमेंबर दीज की फैक्ट्स, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट सीधे सीधे फैक्ट्स आप अपने एग्जाम में आपको यूज करने होंगे। फर्दर, अगर आप स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2023 का इंडेक्स देखो, 74% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। ठीक है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, एंड न्यूट्रिशन 2023 का रिपोर्ट अगर आप देखो, तो 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन was not able to afford a healthy diet, and 39% of the population fell short of a nutrient adequate diet. ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे इंडिया का रैंक और इंडिया का स्कोर इज अराउंड 28.7। ठीक है, अब आप खुद समझो कि हमारी हालत है क्या। बट इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हुए हैं इन सब चीजों को कम करने के लिए, जैसे वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन मेन एस्पेक्ट्स लाइक मिशन पोषण 2.0, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम दैट इज ICDS, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, मिड डे मील स्कीम, scheme for adolescent girls and mothers absolute affection, that is माँ इनिशिएटिव और माँ कैंपेन। प्लस लास्ट में हम लोग पोषण वाटिकास विच हेल्प इन इंक्रीजिंग दी न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ये पोषण वाटिकास भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर व्हाट वी कैन डू इज और व्हाट वी कैन सजेस्ट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, building social and behavioral change communication, that is SBCC प्लान, एक्शन प्लान, इसको भी हम बना रहे हैं। एनहांसिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, ये सब सजेशंस हम दे सकते हैं अपने आंसर में लास्ट। इस टॉपिक को इतना ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत ये था कि ये हर हफ्ते या हर 14 दिन में एक बार आपके न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पे आता ही है, और यूपीएससी भी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जीएस के 1 2 3 4 कहीं पे भी पूछ सकती है, इतना डाइवर्स टॉपिक है ये। ठीक है, एसए में भी पूछ सकती है, इतना डाइवर्स टॉपिक है। नाउ कमिंग टू दिस एडिटोरियल, दिस इज बेसिकली अबाउट रोड सेफ्टी इन इंडिया। इंडिया में रोड सेफ्टी का मसला इतना ज्यादा गंभीर है कि अगर आप देखो तो द इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024, which was prepared by Trip Center at IIT Delhi. It says that not only highlights India's slow progress towards meeting international goals, but also in reducing the road accident fatalities. कि रोड एक्सीडेंट की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, वो भी एक और रीजन है हमारे लिए, चिंताजनक रीजन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, रिपोर्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रही है दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR 6 स्टेट के FIR इन्होंने एनालाइज किए हैं। ठीक है, एंड ऑडिट्स ऑफ स्टेट कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन रोड सेफ्टी गवर्नेंस, इनने ये सब चीजें कंसिडर की है अपनी रिपोर्ट में। एंड देन व्हाट दे आर हाईलाइटिंग कि इंडिया का जो गोल है 2030 का, यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, विच टॉक्स अबाउट कि आपको ट्रैफिक से रिलेटेड डेथ्स को 1/2 हाफ कर देना है बाय 2030। रिमेंबर दिस गोल, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेकेड of action for road safety गोल। इसका गोल क्या है?
कि हाफ कर देना है हमें ट्रैफिक से रिलेटेड डेथ्स को बाय 2030। रिपोर्ट का मानना यह है कि ऐसा गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे अभी, बिकॉज अगर आप देखो तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। क्रैश सर्वेलेंस सिस्टम जो कि नेसेसरी है हमारे पास नहीं है। इंडियाज नेशनल रोड सेफ्टी डेटा सिस्टम जो है इज इन सफिशिएंट फॉर गाइडिंग पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे पास पर्टिकुलर ना इसके लिए कोई डेडिकेटेड डेटाबेस नहीं है। ठीक है, हम जितना भी डेटा एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं वो डिफरेंट रीजंस और डिफरेंट पैरामीटर्स पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेटा सेट्स दो। ठीक है, पहला है परसेंटेज ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स बाय विक्टिम्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन 6 स्टेट्स। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है, और जो बाइक से चल रहे थे लोग उनका नंबर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग मरे। डेथ बाय द टाइप ऑफ इंपैक्टिंग व्हीकल इन दीज 6 स्टेट्स इफ यू सी, तो सबसे ज्यादा लोग जो मरे हैं वो कार क्रैश की वजह से मरे, कि गाड़ी ने ठोक दिया तब जाके मरे। बट वहीं पे जो लोग मरे हैं वो इसलिए मरे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मोटरसाइकिल पे थे, टू व्हीलर मोटरसाइकिल पे थे। ठीक है, 58 इन छत्तीसगढ़, 51 इन चंडीगढ़ एंड 58 इन महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा नंबर। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चला, बट ये डेटा पता कैसे चला? ये डेटा हमें पता चला कहाँ से? एफआईआर को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि नेशनल लेवल पे उतना बड़ा कोई डेटाबेस है नहीं। अब इस चीज की वजह से ग्लोबल बर्डन जो डिजीजेस का है, स्टडी एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम suggests that these tables often contain inaccurate information. क्यों इन टेबल्स में इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्यों हो सकती है? बिकॉज जो यहाँ पे डेटा है, जैसे विक्टिम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्रूशल, कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो लोग गिरे। अब पता नहीं वो विक्टिम चला रहा था या वो बैठा हुआ था उस पर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ क्रैश सर्वेलेंस सिस्टम वी हैव टू रिलाई ऑन एफआईआर्स विच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अस। इसीलिए दिस एडिटोरियल का जो होल क्रक्स है वो हमें यही बता रहा है कि हमारे लिए जरूरत है किस चीज की? अ नेशनल डेटाबेस फॉर फैटल क्रैशेस should be established, which should be accessible to public. Then only we can understand it. ठीक है, because it says only 8 states have audited more than half of their national highways, and very few states have these audited their state highways. जहां पे आपको मार्किंग नहीं मिलेगी हाईवेज पे, साइनेज नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कर्व है, लेफ्ट कर्व है, राइट कर्व है, आगे क्या है, ये सब चीजें आपको नहीं मिल रही है। इसीलिए हमें इस विषय पे ध्यान देने की जरूरत है। डन, चलो। दिस इज सम मोर डेटा अबाउट दी इफ यू टॉक अबाउट दी रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, दी कार टू कार कोलिजन और ट्रैफिक कोलिजन्स are 40 times more than in Delhi than in London. Understand? 56,000 people die in road accidents which are caused due to overspeeding. ठीक है, तो this was recently released in Road Safety Week. तो how much important is this road safety? We need to understand it. Now understanding the role of district agromet offices. ठीक है, ये वो offices है एक्चुअल में they were located within the कृषि विज्ञान केंद्रास। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे आईसीएआर के अंदर काम कर रहे थे। ठीक है, काम क्या है इनका, कृषि विज्ञान केंद्र का? कि आप फार्मर्स को सही इंफॉर्मेशन दो, उनको अवेयर करो और उनको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दो। किस चीज के बारे में? क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, क्रॉप्स के टेन्योर के बारे में, कितना पानी चाहिए, सॉइल के साइंस के बारे में, कि कौन सी खाद डालनी है कौन सी नहीं डालनी है, ये सब चीजें। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, बस इतना काम है इसका। अब कृषि विज्ञान केंद्र में ही इन्होंने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेट ऑफिस एस्टैब्लिश किया, जिसको दामू बोलते हैं, DAMU। ये काम क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट। ये काम क्या करेगा? ठीक है, ये मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? ये इंफॉर्मेशन देगा किनको? फार्मर्स को। किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा?
वेदर की इंफॉर्मेशन कि कब क्लाइमेट कैसा रहेगा, ताकि वो अपने क्रॉप्स को पहले ही सिक्योर कर ले। ठीक है। और ये जो है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा था पूरी कंट्री के फार्मर्स को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फार्मर्स के लोकल लैंग्वेज में, वो भी हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस इन ए वीक। ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही प्रोविजंस है जो यूपीएससी के फेवरेट प्रोविजंस होते हैं, कि ये क्या काम करता है बस। ठीक है। दामू क्या काम करता है? इट गिव्स एडवाइजरी, ये एडवाइस देता है फार्मर्स को ऑल अक्रॉस द कंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, इन लोकल लैंग्वेज, ट्वाइस ए वीक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेक्स्ट मैसेज, थ्रू ग्रुप्स, मैसेजेस, न्यूज़पेपर्स, व्हाटएवर वे इट फाइंड्स, ये कर देता है, मैसेज भेज देता है बस, कि ऐसा ऐसा वेदर रहने वाला है, आप अपने जो भी आपका धान है, खेत है, जो भी करना है वो आप कर लो। अगर अगले 1 हफ्ते तक बारिश होने वाली है तो अभी पानी मत डालो अपने खेत में, ऐसी इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब फार्मर जो है वो वेल अवेयर रहता है। बट यहां पे बात ये हुई, लास्ट ईयर नीति आयोग ने सोचा कि इसको हम ना प्राइवेटाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हमने इसको प्राइवेटाइज कर लिया। और उनको लगा कि ये एक्चुअली जो ये काम है ये ऑटोमेट हो चुका है, ये खुद ही जा रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आईवीआर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन खुद ही जा रही है कस्टमर्स के पास, फार्मर्स के पास। बट एक्चुअल में वैसा हो नहीं रहा था, ये सब मैन्युअली चल रहा था। यहाँ पे बहुत लोकल लेवल पे ऑफिसर्स बैठे थे, ब्लॉक लेवल पे पर्सनल बैठे थे जो ये मैसेजेस भेज रहे थे। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका क्लाइमेट सर्वेलेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके पैरामीटर्स को सेट करना। अब नीति आयोग ने ऐसा किया और बोला कि इसको प्राइवेटाइज कर लेते हैं, और उसकी वजह से अब जो ये अ, दामू और डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट ऑफिस थे, बंद होने लग गए। ठीक है। एंड इट वाज रिपोर्टेड बाय आईएमडी लास्ट वीक दैट इट इज प्लानिंग टू रिवाइव दीज दामूस अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम, जीकेएमएस स्कीम लेके आएंगे और उसके अंदर इनको रिवाइव करेंगे। ठीक है, जो कि अभी बंद पड़े हैं। डन। अगर आप देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, अगर ये फार्मर्स को ना मिले तो फार्मर्स को प्राइवेट लोगों के पास जाना पड़ेगा ऐसी एडवाइजरी लेने के लिए, एंड दे आर चार्जिंग देम 20,000 to 40,000 फॉर 1 ईयर फॉर सच एडवाइजरीज। ठीक है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि गवर्नमेंट ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करे फार्मर्स। डन। चलो, दिस इज समथिंग अबाउट ब्रिक्स। एंड ब्रिक्स से रिलेटेड हम थोड़ा सा और डिस्कशन करने वाले हैं, that how come BRICS came into picture and why BRICS and how much important is BRICS. So basically it was in 2001, 2001, it was in 2001 that a research paper about the growth potential of Brazil, Russia, India and China, 4 कंट्रीज का ग्रोथ पोटेंशियल एस्टिमेट करने के लिए एक रिसर्च पेपर लाया गया। यह रिसर्च पेपर किसने लाया? गोल्डमैन सैक्स, गोल्डमैन सैक्स एक फर्म है। ठीक है, ये फाइनेंशियल फर्म है, और यहाँ पे एक चीफ इकोनॉमिस्ट थे इनके, जिनका नाम था जिम ओ नील, और इन्होंने ही ये ब्रिक वाला जो एक्रोनियम है दिया, जिसका नाम था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है। द ब्रिक्स लेटर ऑन एनकम्पास्ड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। प्रेजेंटली ब्रिक्स represent around 40% of world's population and increasingly sought to be counterweight to the dominance of G7. तो BRICS is a counterweight to G7. BRICS डेवलपिंग कंट्रीज का है और G7 डेवलप्ड कंट्रीज का है। G7 को सपोर्ट करने के लिए वेस्ट लेड फोरम है G7, और इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी है, जबकि ब्रिक्स जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रुपिंग है। ठीक है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रशिया और यूक्रेन में दिक्कत आ रही है, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और रशिया इन्वॉल्व है ब्रिक्स में। ठीक है। ब्रिक्स किस लिए बनाया गया था? ब्रिक्स का एक प्राइम एजेंडा है
Why BRICS? Because of, in order to tackle international terrorism, climate change, food and energy security, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए वॉइस रेज करने के लिए, एंड इट वाज एंटी प्रोटेक्शनिज्म एट डब्ल्यूटीओ। ठीक है, जो डब्ल्यूटीओ में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है उसको बचाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब ब्रिक्स हर साल एक समिट करता है, ब्रिक्स समिट होती है, और यहां पे जो ये न्यूज आर्टिकल है इसमें भी ब्रिक्स की ही समिट के बारे में बात किया जा रहा है। दिस इज अ 3 day मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। ये समिट होने वाली है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और यहां पे जाने वाले हैं कौन? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग है, ये ब्रिक्स की समिट नहीं है। ये मीटिंग है किन की? सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, जो बहुत सारी कंट्रीज के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है, जैसे हमारे अजीत दोवल सर, वैसे ही चाइना के मिस्टर वांग। ठीक है, वांग यी चाइना के इससे पहले भी हमारे जयशंकर सर से मिले हैं, और उससे पहले भी ये अजीत दोवल सर से मिले हैं। अब यहाँ पे जो ये मीटिंग है, एक्सपेक्टेड है कि इस मीटिंग में ये लोग बात करेंगे इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और इससे पहले ये एससीओ के साइडलाइन पे मिले थे, तो वहां पे भी बात हुई थी। अब ये क्या बात करते हैं क्या नहीं करते वो अलग कहानी है, बट हमें ब्रिक्स को कंप्लीट करना है और ब्रिक्स को अच्छे से समझना है। तो ब्रिक्स में होता क्या है? जो ब्रिक्स का फर्स्ट इनफॉर्मली इट वाज फॉर्म्ड एज, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिसर्च पेपर। इसके बाद इन्होंने एक मीटिंग करी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G8, जब G8 की आउटरीच समिट हो रही थी सेंट पीटर्सबर्ग में 2006 में, एक समिट चल रही थी G8 की। उसी टाइम पे ब्रिक्स की भी समिट हुई। दैट वाज द फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। इसके बाद 2000 लेटर इन 2006 ओनली ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, कहां पे? न्यूयॉर्क में। 2009 में पहली बार ब्रिक कंट्रीज की मीटिंग हुई। ठीक है, और ये समिट हुई। ये समिट कहां हुई? येकातेरिनबर्ग, रशिया। ठीक है, येकातेरिनबर्ग, रशिया। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका वाज एक्सेप्टेड as a full member and the grouping became BRICS. Then in 2011, South Africa attended its first BRIC summit, और 2011 की जो ब्रिक्स की समिट थी ये हुई थी चाइना में। और उसके बाद 2014 में द फेमस फोर्टालीजा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड, एंड ये थी हमारी 6th ब्रिक और ब्रिक्स समिट। ठीक है, और फोर्टालीजा डिक्लेरेशन के अंदर ही नेशनल डेवलपमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, एनडीबी, सॉरी एनडीबी बनाया गया था। इसके बाद 2015 में यूफा डिक्लेरेशन आया, in which it was adopted at 7th BRIC summit held in यूफा। यूफा रशिया में है, यूफा इज इन रशिया। ठीक है, एंड दिस यूफा डिक्लेरेशन कवर्स डिफरेंट टॉपिक्स लाइक ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स है यहाँ पे, जिसके बारे में यहाँ पे बात हुआ था 2015 में। 2015 के बाद इंडिया का चेयरमैनशिप आया, और 2015 के बाद 2021 में इंडिया ब्रिक्स को वर्चुअली हेल्ड करता है, वर्चुअल समिट होती है,
and it was the third time that India hosted BRIC summit. इंडिया में ब्रिक समिट आज तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। पहला 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था दूसरा, और तीसरा 2021 में हुआ। ठीक है, इसके बाद 2022 में बीजिंग में समिट हुई और वहां पे हमने बीजिंग डिक्लेरेशन साइन किया गया। एंड इस बीजिंग डिक्लेरेशन में ये बोला गया दैट ब्रिक्स कंट्रीज सपोर्ट द टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। डन। यहां तक ब्रिक्स की समिट का पूरा खुलासा मैंने आपको दे दिया कि किस समिट में क्या क्या हुआ है, बस। ठीक है, क्लियर, डन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होती है यहाँ पे। इसके बाद हमें अगर देखना है तो वो ये है कि ब्रिक्स में मैकेनिज्म क्या क्या चलता है। इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स इंक्लूड, सबसे पहला पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सेकेंड इज नेशनल, जो अभी होने वाली है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। ठीक है, और इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, पीस, स्टेबिलिटी, ये सब लोग आते हैं और इनकी मीटिंग होती है। थर्ड ब्रिक्स के अंदर जो समिट होती है वो है अबाउट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स ने एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बना रखा है, CRA जिसको हम बोलते हैं, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। दिस इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 to support member countries that face balance of payment difficulties due to short-term liquidity pressures. The legal basis of this CRA was established in Fortaleza Declaration. CRA का जो टोटल लैंडिंग कैपेसिटी है, इट इज $100 बिलियन। ठीक है, तो उन कंट्रीज को पैसा दिया जाता है CRA के अंदर जो लोग क्राइसिस में होंगे, जो कंट्रीज क्राइसिस में होंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है वो चाइना का है। डन। तो दीज वेर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, मणिपुर वायलेंस पे मैंने कल टॉपिक पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या एक्चुअल में रीजन है वहां पे। आप कल का वीडियो देख सकते हो। और अभी नया दोबारा से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट फिर से हुआ है। स्टार्ट ही स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, और अभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल ही रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडिया एंड यूएई हैव साइंड अ न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, एक एमओयू साइन किया गया है इंडिया और यूएई के बीच में। यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो वहां के क्राउन प्रिंस है, वो कल परसों की डेट में दिल्ली आए थे और कल उन्होंने ये साइन किया है अग्रीमेंट। ठीक है, और इसके बाद उनने ये जो एग्रीमेंट साइन किया है एक और, वो एनपीसीआईएल और यूएई के बरका, एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां, और यहाँ के एनपीसीएल, दैट इज द नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ दुबई, एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया है, एक एलएनजी के ऊपर, और दूसरा एमओयू एनपीसीएल और बरक्का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ने साइन किया है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो 2 एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं। डन। और तीसरा एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है अबाउट द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो ISPRL है इंडिया की, इसके साथ। ठीक है, और एक और यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है अबाउट ऊर्जा भारत एंड ADNOC के साथ। और फिफ्थ एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी के जो डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनीज है उनके साथ। वहां पे हमें फूड पार्क्स बनानी है। ठीक है, ये 5-6 एग्रीमेंट्स हैं, 5-6 यहाँ पे हमारे एमओयूज है जो साइन हुए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एमओयू ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि हम
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे साथ में काम करेंगे। ठीक है। अब इससे क्या होगा दैट इंडिया और यूएई के बीच में ये जो अग्रीमेंट के ऊपर बातें चल रही थी, ये 2022 से अभी तक चल ही रहा था। ठीक है, कंसेंसस यहाँ पे डेवलप हो रहा था। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बनाया गया था, जिसमें यूएई, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, तीन कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर रही थी ताकि इंडिया के साथ ये साइन हो जाए। इससे पहले ये तीनों कंट्रीज मिली थी कहां पे? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जब हुई थी उस टाइम पे ये लोग मिले थे। कोऑपरेशन फॉर्मेट था यही, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फॉर्मेट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फॉर्मेट रिसेंटली न्यूज में था, तो क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑफ दिस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट एंड सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ट्राइलेटरल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ठीक है, डन। यहां तक कंप्लीट। और यहां तक हमने समझ लिया कि इंडिया और यूएई के अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हुआ है। इंडिया एंड यूएई के अगर आप इससे पहले के रिलेशंस देखोगे तो हमने यूएई के साथ बायलेटरल ट्रीटी साइन की हुई है। यूएई और हमारा रिलेशन जो है वो बहुत पुराना है। और रिसेंटली यूएई के साथ हमने 8 ऐसे पैक्ट साइन किए थे टू bolster the cooperation in key areas like investment, electricity, trade, digital payments। इन सब के बारे में हमने 8 पैक्ट्स ऐसे साइन किए थे, जिसमें पहला आता है यूपीआई एंड AANI। दैट इज, एक तो हमारा यूपीआई है जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और आनी जो यूपीआई लाइक प्लेटफॉर्म है, कहाँ का? यूएई का। ठीक है। नेक्स्ट वाज रूपे एंड जाइवॉन। ठीक है। दिस इज एन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक, जो हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड है रुपे, इसको इंटरलिंक करना है किसके साथ? यूएई के कार्ड के साथ, जिसका नाम है जयवॉन। ठीक है। और वो वहां का कार्ड है। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर बिटवीन यूएई एंड इंडिया। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमें याद रखना है, इज अ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विच इज सीन एज अ की इनेबलर for future investments in both the countries, because UAE has been fourth biggest FDI investor in India। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सच मैकेनिज्म वाज इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज आईमेक, जो हमने अभी रिसेंटली साइन किया था। इट एम्स टू बिल्ड एंड फॉस्टर इंडिया यूएई कोऑपरेशन। ठीक है, ये कहां पे साइन हुआ था? G20 का जो लीडर समिट था सितंबर 2023 में, उसमें हमने ये आईमेक साइन किया था। वो फिफ्थ वाज आर एनर्जी कोऑपरेशन, जिसपे हमने अभी भी ये 5 एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट डिफरेंट एलएनजी के लिए। एक एलएनजी के लिए है, एक पेट्रोलियम के लिए है, एक गैस के लिए है, और एक वहां की ज्वाइंट होल्डिंग कंपनीज के लिए रियल एस्टेट के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे एक है। कल्चरल कोऑपरेशन को लेके द नेशनल आर्काइव्स ऑफ टू कंट्रीज, यहाँ पे हमने एक कोऑपरेशन प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है बिटवीन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ टू कंट्रीज सो दैट वी प्रिजर्व एंड रिस्टोर आर आर्काइवल मटेरियल। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया था, कहां पे? लोथल, गुजरात में।
ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। और इसके साथ साथ हमने एक अ, अगर आपको कोई बोले तो भारत मार्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इट्स अ वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी। ये कहाँ पे है? ये जबेल अली फ्री ट्रेड जोन में बनाया गया है। ये दुबई में बनाया गया और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद रखा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे। ठीक है, और इसके साथ साथ बोको सन्सवानी और बोको सन्सवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था टेम्पल एक रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर बनाया गया था, which was obviously affiliated with स्वामीनारायण संप्रदाय ऑफ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। ये टेम्पल और ये डॉक्ट्रिन जो इसका है, दैट इज भगवान स्वामीनारायण का जो मेन डॉक्ट्रिन है अबाउट हिंदू स्क्रिप्चर्स। दिस बीएपीएस एक बहुत बड़ा टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नेटवर्क 1500 से ऊपर टेम्पल्स का है, जिसमें दिल्ली का अक्षरधाम, गांधीनगर, स्वामीनारायण टेम्पल ऑफ लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, हर जगह टेम्पल्स है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने किया क्या है यहाँ पे, बेसिकली बीएपीएस ने दुबई में एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, एंड दुबई ने हमारे लिए वहां पे एक लैंड अलॉट कर दिया था इस बीएपीएस टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड दिस टेम्पल कंस्ट्रक्शन हेल्प्ड अस इन फॉस्टरिंग आवर फ्रेंडशिप एंड कल्चरल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज बेसिकली रेलिवेंट टू स्वामीनारायण टेम्पल्स। बस इतना याद रख लेना इसमें। This you need to remember the names of these two submarines, and they are anti-submarine warfare shallow watercraft vessels. ये कम पानी में रहने वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट्स है। इन दोनों का नाम है आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की। ठीक है, आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की, ये दोनों क्या काम करेंगी? ये प्रोटेक्ट करेंगी हमारे सबमरीन्स को, और ये अटैक करेंगी या डिफेंड करेंगी एगेंस्ट दी अटैक्स फ्रॉम अदर सबमरीन्स। ये लड़ती है सबमरीन के साथ। दिस इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, ईच वेसल हैज एन इंस्टॉल्ड प्रोपल्शन पावर ऑफ अबाउट 12 मेगावाट। दे होस्ट एंड दे होल्ड टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट्स, माइंस, वेपन सिस्टम एंड कंट्रोल गन्स, रिमोट कंट्रोल गन्स। ठीक है, अब ये सब चीजें हमें याद नहीं रखनी है, हमें बस इतना याद रखना है आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की क्या काम करती है। दे रिमेन इन शैलो वाटर एंड दे हेल्प इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। बस सबमरीन से लड़ने के लिए काम आती है, बस सिंपल। एंड yes, there is again an allegation which is continuously in debate। बहुत टाइम से ये डिबेट चल रहा है कि ईरान जो है वो मिसाइल सप्लाई कर रहा है रशिया को, और रशिया उन मिसाइल्स को यूज कर रहा है इन द इलीगल वॉरफेयर अगेंस्ट यूक्रेन। अब ये इस पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो अलग कहानी है। इट्स जस्ट एन अपडेट, ताकि आप ये याद रख लो बस। ये चीज ईरान ने तो टोटली डिनाई कर दी है, बट रशिया ने अभी तक इस पे कुछ नहीं बोला है। Lastly, there is this important editorial, or you can say it's an article, just an article about explanation about why these spacecrafts need helium. Helium is the lightest fuel. ठीक है, बहुत ही हल्का होता है। It's a non-toxic gas, but ये breathe नहीं किया जा सकता। However, it's used to pressurize the fuel tanks so that वहां से फ्यूल निकलता जाए, रॉकेट के इंजन में जाता जाए, और रॉकेट का इंजन फ्यूल का उसको प्रॉपर फ्यूल मिलता रहे ताकि वो चलता रहे। अदरवाइज होगा क्या, अगर हीलियम नहीं है तो फ्यूल नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा,
जो इंजन को थ्रस्ट क्रिएट करना था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लस ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे रॉकेट लॉन्चेस थे, ठीक है, जो फेल कर गए बिकॉज ऑफ द लीक ऑफ हीलियम इन देम, ठीक है। कोई भी ऐसा रॉकेट जिसमें हीलियम लीक कर रहा हो, जैसे चंद्रयान 2, Ariana 5, हीलियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हीलियम लीक कर गया तो इंजन के पास फ्यूल नहीं जाएगा, फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन चलेगा नहीं, इंजन चलेगा नहीं तो रॉकेट आगे नहीं जाएगा, बस रिमेंबर दिस, ठीक है। फर्दर आप ये थोड़ा सा देख सकते हो, और दिस वाज द क्रक्स व्हिच आई टोल्ड यू। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हियर, एंड if you have any doubts about any of the topics which we are discussing in this, you can feel free to contact me. प्लस इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है मेंटोरशिप से रिलेटेड, यू कैन अगेन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अगर आप कोई भी एग्जाम टैकल कर रहे हो अभी और आपका टारगेट है कोई एग्जाम, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो, और आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या पढूं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं अभी तक, मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा सोर्स फॉलो करना है, कौन सा ऐसा सोर्स हो सकता है जो सिंगल बट रिलायबल सोर्स हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे मेंटोर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, दिस इज टोटली ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन, आई होप यू कनेक्ट अस सून।